Thank you. Good evening, everyone. It's a pleasure to welcome you to this wonderful session today. We are going to have on helping children during the COVID time. We know it's a challenging time for everyone. So first of all, I wanted to thank you to Rajiv ji, my senior. He has given this suggestion to organize this webinar, and uh, thank you to Dr. Isha, Dr. Aarti, and Ashok sir for agreeing to be part of this. Uh, and quickly, we have all organized everything for this session. Uh, and now I would like to invite Rajiv sir to give us a little bit more information about the initiative called JNU Development Professionals, and a bit about NDCHRC. Sir, over to you. Thank you, Pratyush. I will not take much time. My name is Rajiv Jha. मेरा नाम राजीव झा है और मैं डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हूँ और JNU का फॉर्मर स्टूडेंट भी रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँ कि JNU डेवलपमेंट प्रोफेशनल हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया. Because we always had a feeling that JNU as an institution produces a lot of good intellectual output, but a lot goes into the government sector and the media and the bureaucracy, and also in development practicing. But the people goes into development practicing has not been recognized as a one collective entity, and they are also contributing a lot. Whereas other institutions in India, if you see like IRMA and the TES, are attaining good name and marching ahead in terms of contributing to society, professional management of issues, all that. So side by side, JNU was also being politically embroiled in different issues. So it was an idea that to start a collective professional network to promote the right cause of development by the JNUites who are doing a lot of good works across the country, India and abroad, and as well as to discuss on current issues and debates which is going on in our society and how we could help each other. That's a basic background of coming out of a JNU development professional, and we started with 3 people, 3 former students, and then gradually it expanded, and now we have more than 100 development professionals from JNU across the generations are part of it, helping each other in terms of raising the issues, raising the debate, reaching out to the people when in need, and all that we are doing it. At the same time, we also organize some webinars and conferences and the research papers to do that, so that we will be keep evolving or not just acting as only a WhatsApp group. Generally, it happens you have a network and then you end up having a WhatsApp group and a chit chat only. So it's more of a evolving and a more of a live and dynamic group. We're trying to make it in that way. The idea of webinar was quite long. पैंडेमिक सेकेंड वेव के दौरान ही हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग को इस पे काम करना चाहिए, और हम लोगों ने एक छोटा सा फंड रेजिंग इवेंट भी किया था विद इन ए ग्रुप, और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि खासकर कई लोगों को जो मेडिसिन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जो क्राइसिस में थे, उन लोगों तक हम लोग लाइफ सेविंग मेडिसिन अपने नेटवर्क के थ्रू पहुंचाएं, और उसमें प्रत्युष और 1-2 और जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने काफी इसमें सपोर्ट किया था और कुछ फंड रेज किए थे, और लोगों तक हम लोगों ने कोशिश किया था कि उन तक हम लोग एक हेल्पिंग हैंड के रूप में जाके इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, because if you remember the crisis was quite severe and it's quite a gut wrenching crisis, but at least I have not come across those kind of crises. I could remember at one night I was trying to save one person from Odisha and trying to provide him access to him this life-saving medicines and equipments through my own contacts and the bureaucracy and all that. We could do everything but could not save the guy. I mean, that was really heartbreaking. I mean, I could not sleep that night. So that was my personal experience. So taking on that clue, I mean, we have thought to organize this webinar on protecting children from the 3rd wave of COVID.
And what a good idea to have to invite the expert. Pratyush was already there. He already working on those issues, and through his contacts and people and support from the development professional group, we thought to start this webinar and to generate some knowledge, some understanding, so we could help out any people, any grassroots worker who is willing to listen and take this forward. तो ये हमारा बैकग्राउंड है डेवलपमेंट प्रोफेशनल का, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे. हम लोग पास 3 पैनलिस्ट हैं ऑलरेडी, क्वाइट एमिनेंट लोग हैं. तो इंस्टेड ऑफ आई राइट read them about their pedigree and all that, I'll just take the name, and then they can while working, they'll speaking, they can reflect themselves. We have Dr. Aarti Bakshi, and we have Dr. Isha Khetrapal and Mr. Ashok Kumar. So we have 3 good people, eminent person in the area of social development, protections and medical services. And they will be today our panelists, and they will be our knowledge person who will be guiding us in terms of their understanding and all that. पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि जो अशोक जी हैं वो पहले बोल लें, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि जो वो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं और वो शायद वो ग्रास रूट लेवल के जो इश्यूज हैं उस पे वो सीरियसली बात कर पाएंगे, तो एक सेटिंग बन पाएगी. साथ उसके बाद फिर डॉक्टर आरती बख्शी और निशा खितपाल एज एंड व्हेन दे फील आप कर मतलब बोलेंगी. और हर व्यक्ति को 10 मिनट शायद अच्छा होगा कि अराउंड 10 मिनट्स से पहले बोलें, और उसके बाद जैसे जैसे डिबेट इवॉल्व करती है क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू और एक लाइव इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो ये हमारा आज का बेसिक एजेंडा है, और हाउ वी आर विल गोइंग टू प्रोग्रेस इन दिस वेबिनार. So thank you for coming, and thank you for taking your time for this issue. Now may I request Dr. Ashok Kumar ji to have reflection on the issue. Ashok Kumar ji, please. Thank you, Mr. Rajiv. Good evening, dear Mr. Pratyush, Mr. Rajiv, Dr. Aarti Bakshi, Dr. Isha Khetrapal, my friend Ravi, and distinguished members of JNU Development Professionals. Participants and friends, many of you are already resource person and knowledge person for this pertinent issue. Thank you very much this esteemed platform of JNU Development Professionals for taking this initiative to discuss on the probable 3rd wave of pandemic and how to way forward. And before that, we must know, the learnings and lessons and exposure and experience of 1st wave and 2nd wave, very important. So it's my pleasure and privilege to share my thoughts on this pertinent issue of protecting children from 3rd wave of COVID-19. ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ. मेरे कई साथी यहाँ हैं साथ में, आज मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स में, जिन्होंने 1st वेव और 2nd वेव में मेरे साथ काम किया है, कंधे से कंधे मिला के. अच्छा होगा कि वो भी बीच बीच में कभी अपने सवाल रखें या अपने सुझाव और अपनी बात भी रखें, अपने एक्सपीरियंस भी रखें. We all are aware of that COVID-19 pandemic has brought the entire nation to a halt in 2020 and again in 2021. Health officials and medical professionals were struggling with containing the disease and testing and treating and tracking the affected people. The differential impact of the COVID-19 pandemic on society needs to be acknowledged, keeping in mind the 3rd wave is not in pipeline, but it is probable. So while some of us are practicing social distancing and exploring work from home options aggressively in the hope of better tomorrow, it is clearly visible that a substantial number of children emerged as victims of such apparently positive measures. ये बिल्कुल साफ है. अगर 1st और 2nd में आप ये देखेंगे कि एडल्ट की कैजुअलिटीज ज्यादा हुई है, ये मत भूलिएगा कि जो सफरिंग्स है वो बच्चों की उनसे कम नहीं हुई है, ज्यादा ही हुई है. हो सकता है इन्फेक्शन कम हुआ हो. ये भी सच है कि मोर्टेलिटी रेट कम है कोविड के चलते,
लेकिन उनके परिवार में जो ये सब हुआ, जो कैजुअलिटीज, जो इन्फेक्शन, जो लॉकडाउन, जो लाइवलीहुड का लॉस, उसके चलते बच्चों पे जो प्रभाव पड़े वो बड़ा जरूरी था समझना। थर्ड वेव की जब बात अपन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे उन लर्निंग्स को अपन मैप करके और फिर उसको मिटिगेट कर सकते हैं कोविड-19 के टाइम में। फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन आर द हार्ट ऑफ द fears around a possible third wave of COVID-19 in India. State governments, including those in Delhi and Maharashtra, have been raising alarms over pediatric capacities in hospitals and vaccines. A large country with huge population, almost over 37% of population is of children below 18 years. तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है कि बड़े पैमाने पे इसकी प्लानिंग की जाए, इसका प्रिपरेशन किया जाए। वैसे भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का चल ही रहा है अभी ट्रायल, 12 to 18 और फिर 6 to 12 के बीच में जो उनके ट्रायल्स हैं जिसके लिए वो लोगों को तैयारी कर रहे हैं वो चल रहा है और किसी भी समय में ये वैक्सीन हो सकता है। लेकिन हम आज जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में उसके लिए वैक्सीन नहीं है, तो ये भी रखना होगा। और इन सब चीजों पे डॉक्टर ईशा हमसे बात करेंगे। इसके अलावा जो खतरे इमर्ज हो रहे हैं थर्ड को लेके, वो यूके और सिंगापुर में जो डेल्टा वेरिएंट्स आए हैं उसको लेके है। तो खतरे हैं, थर्ड वेव के खतरे हैं। अगेन इन सब इश्यूज पे डॉक्टर ईशा बात करेंगे। मेरा जो आज फोकस होगा वो स्पेशली होगा कि कैसे नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मिलके या कभी कभी अलग अलग या कभी वहां जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकी वहां एनजीओ के साथ ही आज यहाँ मौजूद भी हैं बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि वो कैसे रीचिंग टू अनरीच्ड विद द सपोर्ट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम वो पहुंचे। तो मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। स्पेशली डॉक्टर ए बी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मैंने काम किया, तो मंगोलपुरी, होलंदी कला, नरेला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन सब जगहों में 2020 में और फिर सेकेंड वेव में 21 में अपन लोग जो कलीग्स या वॉलंटियर साथ में काम कर रहे थे लाइफ को रिस्क पे लगा के, तो मैं उस पर बात करूंगा कि वो कौन कौन से इशूज हैं। ऑफकोर्स साइको सोशल इशूज पे डॉक्टर ईशा, डॉक्टर आरती बख्शी बात करेंगी और हेल्थ और मेडिकल केयर के इशूज पे सब को ध्यान में रखते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर ईशा छत्रपाल आगे बात को बढ़ाएंगे। जो मेजर इशूज एंड challenges we observed during our engagement children and families during pandemic, it includes health, medical care, immunization, food and nutritional care, psychological and social care, academic and learning care, lack of physical activities and sports, violence against children, exploitation of children, and involvement of children in serious and petty crimes. Apart from those issues that emerged due to COVID-19 being behind the doors, the domestic violence and its impact on children's mental, psychological, physical, social health. So let me start with, a little bit light on this health and medical care issues. So children had no access to health and medical care issues. They were infected. Many of them were not infected with the COVID-19, but they did not have the access to healthcare in those days. That is very important. And apart from that, the second wave was worse as a struggle for bed and oxygen for going on COVID patients, and number of young children also, in fact, suffered with that. But at the other side, a number of children were denied access to general health care, apart from denied the regular immunization, the booster dose, everything. In fact, we have been in association with this network called NEEV in Delhi. It is Delhi Forsage. And we found that millions of children are, in fact, could not get the booster dose or the regular immunization. And that is, again, another big million question for us. Another big fight was for food and nutrition. So millions of families lost livelihood or a source of income to meet even 2 meals a day. So children suffered to great extent. For some months, no midday meal.
no nutrition at ICDS center, no adequate and proper food at home even. Then again, no academic or learning activities for millions of children, as even when online classes started, it was accessible to hardly 40% children with lots of dropped calls. So again, it was also denied. The schools were closed, Anganwadis were closed, even doors of home were closed. Nowhere to go, nowhere to play. So in fact, there were no space for children. This is also a big concern when we will be talking about the way forward for preparing against the probable third wave of COVID-19. Apart from this, thousands of children were orphaned, and this was unexpected and very pathetic at the same time. So these were the issues we were struggling with. The violence against children inside and outside home increased to a great extent. A large number of cases of physical, mental, sexual, and economical exploitation of children were reported. At the same time, many cases were not reported. We could conduct a study and FZDs on impact of COVID-19 on children in 2020 and again in 2021. So some of the states, including UP, MP, Maharashtra, West Bengal, Jharkhand, Orissa, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu, all, Bihar, and all. So it was 69% to 200%, 69% to 200% increasing trends in child marriage, in child labor, in child trafficking. So it was very disappointing. All the years we worked, it was almost, washed away like that. फिर देखें कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट के क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना बड़ा वो शॉक लगा था, जबकि लॉकडाउन हुआ था और कोविड-19 के चलते तमाम वो सोर्सेज, क्योंकि इंडिया का 90% पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, घर में इनकम आना बंद हो गया, तो सच ये मानिए कि किसी दूसरे के सहारे पे या तो लोगों ने गिरवी रख दी, जेवर, जमीन, घर जो भी पास में था। हमें तो पता लगा कि गैस का चूल्हा भी लोगों को गिरवी रखना पड़ा, हम जहाँ काम कर रहे थे। तो आप बताइए कि वो किसी तरह से बस खाना मिले, तो वो 2 समय के खाने के लिए प्रतिदिन का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। जब अपन प्लान बनाए तो इसको जरूर ध्यान में रखें कि कैसे करेंगे, अपन इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो अगर बंद हुए तो जहां चल भी रहे थे वहां उनके बहुत कम उनको मिलना लगा, जो मंथली पैसे होते थे या डेली वेज जो होते थे, जहां कहीं भी मिला। तो आप जानते ही हैं कि स्कूल में टीचर्स को कम पैसे मिलने लगे, हाफ हो गया उनका सैलरी। तो इस तरह से कई फैक्ट्रीज में जो बड़ों को ज्यादा पैसा देना पड़ता था, तो बच्चों को वहां लेबर के रूप में रखा गया और उनको कम से कम पैसा दिया गया। स्पेशली जो बच्चे जब आउट ऑफ स्कूल हो गए तो कैसे उन बच्चों को खेतों में मजबूरी बस काम करना पड़ा और कितने सारे उसके साथ रिस्क हुए, ये सब इश्यूज थे। अपार्ट फ्रॉम कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे कि मोबाइल का प्रचलन बढ़ा तो उसका हार्मफुल यूज है। डॉक्टर आरती बात करेंगे इस पे, जब कैसे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। प्री मैच्योर बिहेवियर आने लगा बच्चों में। हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो पोर्न फिल्म्स के प्रति भी उनका बढ़ा, उनके देखने का वो कर्म बढ़ा। जो हमारे पास जो स्टडी आई उससे जो पता लगा, ड्रग एडिक्शन बढ़ गया, बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व होने लगे। ये सब इश्यूज आए जिन पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब अपन प्लान करें तो कैसे इसको एड्रेस करेंगे उस पे बात करेंगे। जब सारा स्कूल बंद हो गया तो अपने भारत में ही लगभग 32 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हुए, और जिसमें कि लगभग 15.8 करोड़ बच्चे लड़कियां हैं और रेस्ट 16.2 लड़के हैं। ये बच्चे जब हुए और इनके लिए जब ऑनलाइन का इंतजाम किया गया तो आप सोचिए ना कि भारत की जो अधिकांश आबादी है 60 से 65%, वो तो अभी इसके एक्सेस में है ही नहीं। तो ये पूरा एक 2 सत्र एजुकेशन का छूट गया। तो ऐसे में जो हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी संस्थाएं थी वो आगे आए और सरकारी के भी कुछ कदम हुए, लेकिन वो बहुत कम थे जरूरत थी उसके हिसाब से।
तो ऐसे में हम लोगों ने जो कुछ एक्टिविटीज की इसको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वो था कि बच्चों के साथ उनको इंगेज करना शुरू किया। पेंटिंग, किचन गार्डनिंग, प्लांटेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। Last 2 minutes of you. Last 2 minutes of you. Thank you, but I would request to another 2 minutes for this session. Earlier I was told for 15%, so 15 minutes. So it would be good if you can provide me altogether 12 minutes. ठीक है। Hope it is fine. Yeah. So उसके बाद फिर बच्चों के साथ हमारा एक्टिविटी हुआ कि एकेडमिक की जो सेशन लॉस हो रहा है, तो हमने ऐसे 400 बच्चों फिर उनके साथ हाइब्रिड मोड पे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे हमारे लगभग 20 साथी उनके साथ इंगेज हुए। न्यूट्रिशन के लिए ऐसे 1000 चिल्ड्रेन हम डायरेक्ट बच्चों को न्यूट्रिशन पहुंचाया। थैंक्स टू नीव नेटवर्क प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली न्यूट्रिशन फॉर दीज चिल्ड्रेन अपार्ट फ्रॉम एक्सेल एंड Germany, India program. Apart from that, the medical support, again, we reached almost 2,500 families. And other organizations also, in fact, had been working those days with us at the same time. We distributed dry ration and cooked meals with support for Save the Children and Plan International and TTH and all, and even donation by individuals, even by my colleagues. So, and then engaging them children with sports and game and music, and then also we started to connect them with the government schemes. So our volunteers with mobile and being online to submit their applications, and then connected a number of people with the government schemes. Recently we started help desk, 2 help desks for children. These are the things I am just mentioning here, so that when we will be addressing the issues or preparing our plan for this probable third wave, then we can inculcate these things as well for addressing this third wave of pandemic. ये सब छोटे-छोटे स्टेप्स बेसिस पे हम लोग कुछ और अवेयरनेस रेज कर रहे थे वैक्सीन और प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेके बच्चों और बड़ों के भी बीच में। तो इन सबको देखते हुए थर्ड वेव को अगर दिमाग में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि पहले से अपनी तैयारी कर लेना चाहिए कि कैसे अपन मिड डे मील का सप्लाई चेन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था ये दोनों कोविड-19 के। दिल्ली और केरला में तो ये अपन देख रहे हैं कि लोगों ने शुरू भी किया है। फिर ये जो फ्री राशन है वो वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड किया जाए, 100% हाउसहोल्ड को उसकी मैपिंग कर लें। इसके अलावा जो मनरेगा के भीतर में रूरल हाउस होल्ड हैं उनको आप 30 से 50 दिन का कम से कम जो लेबर वेजेज हैं वो प्रोवाइड करें। एसएचजी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से आप आईसी मटेरियल और अवेयरनेस रेज करें। इसके अलावा जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जो बैंक के लोन रिपेमेंट के इशू हैं, ये एक बड़ा इशू उठा था, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत होगी। हम लोगों ने जो कुछ छोटे छोटे रखा था कि क्या क्या करना चाहिए तुरंत, वो 1 मिनट में मैं आपको बता दूं आगे, और अपने को पैनलिस्ट बताएंगे कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग बहुत जरूरी है, जिसकी कमी लगी गई कि कितना जरूरत है वो हम जान ही नहीं रहे हैं। और रिसोर्स मैपिंग हमारा क्या है उसका हम एक वो कर लें। इसके अलावा कैसे रीचिंग टू अनरीच्ड के लिए एक प्लान अपन बनाए, जो कि इसमें सीएसओज बहुत मदद कर सकते हैं। आंगनवाड़ी को केयर सेंटर बना दिया जाए, सबसे छोटा यूनिट है और वो अपने 40 बच्चों को लेकर खूब अच्छे से काम कर सकती है। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक सब होगा। स्कूल्स को केयर सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया जाए। जब आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपके जो बच्चे हैं स्कूल के इनरोल, आप उनकी ट्रैकिंग करें, उनका फॉलो अप करें और उनके केयर का सेंटर वहां करें। ये सब कुछ इनोवेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स हैं उसी में आप काम करेंगे। जो चाइल्ड फ्रेंडली मोहल्ला क्लिनिक या उसका सब्स्टिट्यूट को स्ट्रेंथन किया जाए। तमाम एनजीओज की मैपिंग हो कि वो कौन कौन कहाँ मदद कर सकते हैं। जो सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट है वो दिया जाए। इसके अलावा जो क्रिएटिव इंगेजमेंट है बच्चों के साथ, उसकी एक प्लानिंग हो, क्योंकि ये जो साइको सोशल सपोर्ट का मुझे लगता है हेल्थ केयर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। और मेडिकल सपोर्ट और एकेडमिक सपोर्ट तो साथ में होगा ही। इसके अलावा लोकल हेल्प डेस्क सेंटर्स खोले जाएं छोटे छोटे यूनिट में,
और वहां से लोगों को जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनसे उनको कनेक्ट किया जाए। मैं यहाँ रुकता हूँ, मेरा समय हो चुका है, अपन आगे बात करेंगे। मैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंसाइटफुल रिफ्लेक्शन। और आपने काफी इम्प्रॉम्प्टू बातें की, लगातार आपने फ्लो में काफी कहा। करीब आज हमारे पास 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशंस भी बीच बीच में होगा, और ताकि हमारा जो आज का इंटरेक्शन है वो लाइव हो। मेरे अपने पर्सनल एक सवाल है कि अगर बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बिफोर वी शुड गो टू अनदर पैनलिस्ट, एक सवाल मुझे पूछना है ये कि 3-4 चीजें अगर किसी को करनी हो, किसी फैमिली को, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकल, सोशल प्रोटेक्शन, कंबाइन ऑल फैक्टर्स टुगेदर, तो वो क्या करे अमन? क्योंकि हालांकि सवाल भी बहुत वेग है और पता नहीं जवाब शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो 3-4 चीजें क्या कर सकता है अपने लेवल पे, नॉट गोइंग टू द सिस्टम्स, नॉट गोइंग टू द गवर्नमेंट, एट हिज ओन लेवल। राजीव जी, मैं कुछ बोलूं इस पे? आई थिंक डॉक्टर ईशा भी बोलना चाहेंगी। जी, 2-3 चीज जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ा बिजनेस बच्चों के लिए खेल है। तो अगर खेल आपके आम मर्रा जिंदगी में एक ऐसा अनुभव दे सकता है जो बच्चे खुश रह सकते हैं, उससे बच्चों का रोना, दुखी होना, शाम को माँ को तंग करना काफी कम हो जाता है। तो अगर छोटे से छोटा, मतलब कागज की किश्ती बनाइए या एरोप्लेन बनाकर यहाँ से वहां दौड़ाइए, यहाँ तक कि जो खाना बनाने के सामान है उसमें भी अगर माँ रोटी बना रही है और छोटी सी रोटी का टुकड़ा एक छोटा बच्चा बनाए, तो उसको जो खुशी होती है कि मैं भी इसमें भागीदारी हूँ, वो आपकी उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से खेलना सबसे बड़ी चीज होती है एक बच्चे के लिए, छोटा हो बड़ा हो। यहाँ पर ये भी चाहती हूँ कि हमें टीनेजर या थोड़े से 13 और 18 वर्ग के बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जैसे बोलते हैं ना, द नो टेक्नोलॉजी जोन, जैसे टेक्नोलॉजी तो अब हमारी पूरी दुनिया में भरी गई है। अगर नो टेक्नोलॉजी जोन मतलब माँ बाप के पास 10 मिनट भी अगर हो ना उनकी बातें सुनने के लिए, तो वो उसी से शुरू हो सकता है। जब आप खाना खाते हुए बिना फोन लिए एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाएं, तो वो एक साथ परिवार हमेशा रहता है। हंसी मजाक जहां पर रहेगा वहीं पर ऑक्सीटोसिन मतलब हार्मोन्स भी अच्छे खुशी रहेंगे। तो अगला दिन बच्चा जब उठेगा तो ना वो बोलेगा कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, ना माँ बोलेगी कि जल्दी उठो, मतलब ये सब आराम से बैठ जाता है। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। घर में बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दूसरा, काम में हाथ बटाना। देखिए ये सब चीजें अब बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई हमारे घर में नहीं आ रहा, तो अगर कोई झाड़ू कर रहा है तो उसके साथ कोई पोछा कर दे, या जब बर्तन धुल रहे हैं साथ साथ पोंछ के वापस रख दे। ये सब कपड़े तय लगाना बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी देती है। तो अगर वो बच्चे हाथ बटाते हैं तो माँ बाप भी खुश, उनका खेल भी हो गया और बातें बहुत ज्यादा हो गई। राइट। थैंक यू आरती जी। मतलब मैं आपका समय लूंगा। मेरी जो समझ में ये जो मेरी याददाश्त ये है कि हम लोग जब बैठते थे माँ बाप के सामने में बातें करने के लिए तो पिट जाते थे जी। और भागते रहते थे कि कब बातें नहीं हो, क्योंकि ज्यादा बातें होती थी, सर टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था उतना, तो इसलिए वो अलग मेमोरी है। अब शायद इसकी एक्चुअल नीड अब आई है जब टेक्नोलॉजी ओवरवेलम कर रहा है लोगों को, तो एक जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो अब नॉर्मल हो गई और उसकी डिमांड बढ़ गई है अब ज्यादा। I think राजीव जी, the major difference that came in ना, जो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बने और दोनों माँ बाप बाहर काम करने लगे, and suddenly they realized that time gap and the psychological gap, जो unfortunately हमने
अपने माँ बाप से शायद उतने खुल के कभी बात नहीं कर रही है, बट जी आज जी आपके स्कूलों में भी बहुत आराम से सेफ अनसेफ टच, गुड टच, बैड टच, एडिक्शन, कितने आराम से बात करी जाती है। उसी की वजह से मुझे लगता है दिस साइकोलॉजिकल गैप कैन बी मैच्ड अप ओनली इफ वी कम्युनिकेट। अगर माँ बाप भी लैपटॉप या टेलीफोन पे पूरा टाइम रहे तो जो न्यूक्लियर फैमिली है पता नहीं कितनी छोटी होती जाएगी। वैसे ही राइट बच्चे एक घर में एक से ज्यादा तो आजकल दिख ही नहीं रहे हैं। जी जी thank you. Now may I invite Dr. Isha Khetrapal ji to reflect on your point of view. Thank on you. this particular topic actually, तो जो मेरी प्रेजेंटेशन आएगी उसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जी जी agree with Dr. Bakshi because जो acute effect मतलब कि जो उसी समय का इफेक्ट बच्चों पे पाया गया है वो फॉर्चुनेटली अभी कम रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में ज्यादा मिली हैं डेफिनेटली, पर जो प्रोपोर्शन रही है मतलब कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन शोइंग कॉम्प्लिकेशंस हु हैव बीन इन्फेक्टेड वो काफी कम रहे हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस मिली हैं बच्चों में वो थोड़ी सी एटिपिकल जो डिजीजेस हमारे को रूटीनली या कॉमनली नहीं मिलते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट टाइप मिली गई है। तो ये सारी चीजें हमारी इन बच्चों में एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग कोविड। और डेफिनेटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो बच्चों में रहा है वो मेंटल और साइकोलॉजिकल रहा है, क्योंकि बच्चों को जितनी स्टिमुलेशन या जितना सब कुछ प्ले टाइम एजुकेशन टाइम वो सब कुछ मिलना चाहिए था वो बिल्कुल एकदम से कट हो गया। और वो जितना वो बाहर जा भी पाते थे वो भी वो बिल्कुल नहीं कर पाए। और माँ बाप के घर में बिजी होने के कारण वो घर पे जो उनको काम करते हैं रूटीनली या जिन जिन चीज़ों से उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ती है वो बिल्कुल बंद हो। तो डेफिनेटली अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन द ऑफ द पैंडेमिक सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों को साइकोलॉजिकल और मेंटल ही पड़ा है। थर्ड वेव में तो वो देखने की बात है। So I think I will, maybe I should start on my presentation. So I'm Dr. Isha Khetrapal. I'm a practicing pediatrician in Khetrapal Nursing Home, and I'm associated with NDCHRC Trust for a very long time now. And we all work together to try to make healthcare equitable, evidence-based, and standardized, and available to everybody. सबसे पहली चीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगले तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस एड्रेस करना मैं ये क्वेश्चंस एड्रेस करना चाहूंगी कि क्या जो आई थिंक सबके दिमागों में होंगे अभी कि विल देयर बी अ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारा अभी भी सोशल बिहेवियर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से या सब रीजंस की वजह से इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग आवर पॉपुलेशन, तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से आप सबको काम की ज़रूरत है, सबको बाहर या सबको तो नहीं मतलब काम के लिए किसी ना किसी को बाहर निकलना ही पड़ेगा और जो बाहर निकलेगा वो घर में आएगा ही और जो घर में आएगा तो वो इन्फेक्शन लेके आने की उसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इज द थर्ड वेव मोर लाइकली टू अफेक्ट चिल्ड्रन। इसमें कुछ बातें हैं। एक चीज वो कि अभी तक बच्चों का तो सर जैसे आपने अभी बोला था कि बच्चों के इन्फेक्शन कम हुए, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। डेफिनेटली बच्चों को इन्फेक्शन शायद अडल्ट्स जितने या उससे थोड़ा कम हुए हैं। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मतलब कि माँ बाप का बच्चों को लेके जो प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट रहता है और बच्चों को हमेशा वो एक शेल्टर करके रखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली रहा है, उससे हमें फायदा मिला है। पर मेजॉरिटी टाइम्स बच्चों के टेस्ट नहीं किए गए हैं क्योंकि मोस्टली इसके सोशल रीजंस होते हैं, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक, कि मोस्टली पेरेंट्स करवाना नहीं चाहते हैं या तो डर के लिए या फिर ये सोच के कि भी अगर कोविड निकल गया तो क्या होगा। बट डेफिनेटली बच्चों के टेस्ट एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स बच्चे खुद भी अनकोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि नाक और मुंह में जो डाली जाती है तो उससे बच्चे इरिटेट होते हैं।
तो डेफिनेटली बच्चों के लिए मतलब बच्चों की टेस्टिंग कम रही है, बट क्लिनिकली हमने जितने बच्चे देखे हैं वो इक्वल या फिर उससे थोड़े कम रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन। पर अच्छी बात जो रही है वो ये रही है कि मेजॉरिटी बच्चे, मतलब अगर 100% बच्चों में से सिर्फ 1 या 2% को कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस भी इस तरीके की हुई हैं जो मैनेजेबल हैं, जिसमें कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि वो ऑन टाइम पकड़ी गई है, या फिर अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो इमीडिएट नहीं है, तो मतलब ओवर टाइम डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। more likely to affect children physically as well as mentally मैम जैसे बात कर चुकी हैं, वो डेफिनेटली असर रहा भी है और चांसेस हैं कि आगे भी रहेगा, क्योंकि अभी तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सिचुएशन सोशली नॉर्मल हो पाएगी एटलीस्ट और 5-6 महीने तक एटलीस्ट, या मे बी अ ईयर। थर्ड क्वेश्चन इज कि विल चिल्ड्रन हैव मोर कॉम्प्लिकेशंस? इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, तो डिपेंड करता है वेरिएंट पे। तो अभी तक जो डेल्टा वेरिएंट, तो जो सेकेंड वेव भी आई है उसके लिए जो पॉजिटिव रहे हैं वो डेल्टा प्लस वेरिएंट रहे हैं, मोस्टली अराउंड 60 to 70% केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही रहे हैं, एंड दीज वर द वंस हु वर नॉट कवर्ड बाय कोविशील्ड एज वेल एज कोवैक्सीन अंटिल नाउ। But we had some cross immunity or cross antibodies, मतलब कि because of the vaccine being present in our body, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली माउंट हुई, हेल्पिंग अस कि भी हमारे को वो सिवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि बच्चों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी या नहीं होंगी। अगर अगला वेरिएंट जो है या अगला वेव जो रहती है वो डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट की है, तो चांसेस हैं कि इसी तरीके से जैसे ट्रेंड चला आ रहा है वैसे ही चलेगा। अगर वायरस फिर से म्यूटेट करती है और फिर से एक और कोई नया वेरिएंट इमर्ज होता है, तो फिर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि वो बच्चों के लिए ज्यादा सिवियर या कम होगा। पर जो चीज हमें प्रोटेक्ट करती है, जिस चीजों से हमें लगता है कि बच्चों के लिए ये फायदेमंद रहा है, तो एज वी टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन चिल्ड्रन बी प्रोटेक्टेड, हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी कुछ चीजें हैं। मैं तो स्टार्ट करूंगी डिलीवरी से, ठीक है। डिलीवरीज हमेशा अस्पताल में होनी चाहिए। आप अस्पताल में जाने के लिए सब चीज़ों के लिए डर लगता है, पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं या माँ और बच्चे के लिए कर सकते हैं, वो वहाँ पे फुल प्रिकॉशंस के साथ किया जाता है, और वो बच्चों के लिए फुल प्रिकॉशंस के लिए किया जाता है। एंड हमारी पूरी मतलब 100% एफर्ट्स होते हैं कि किसी को भी क्रॉस इन्फेक्शन या कुछ भी ना हो, तो वो नहीं होता है। सेकेंडली, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। मिस्टर प्रत्युष, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ब्रेस्ट फीडिंग, एज वी सेड, ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, जो हम रोल ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को, तो वो जो होता है, तो माँ का जो दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें वैक्सीन से मिलती हैं। तो माँ थ्रू द ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को वो एंटीबॉडीज पास करती हैं। क्या अगर सपोज मदर को कोविड इन्फेक्शन ही है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं? बिल्कुल वो करवा सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन जो एंटीबॉडीज, जिस इम्यूनिटी, जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आपकी बॉडी आपके अंदर बना रही है, वो आप पैसिवली बिना किसी रेजिस्टेंस के बच्चे को अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू दे सकते हैं। तो वो आपके लिए, मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड इन्फेक्टेड, कोविड वैक्सीनेटेड एंड प्रेग्नेंट मदर्स, सबके लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए अब वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है, सो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो करना जरूरी है। जैसे सर ने अभी कुछ समय बोला था कि डिलेड प्राइमरी वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अप टिल 9 months हम ये चाहते हैं, हमें ये पता है कि 9 महीने तक के लिए जो मदर से एंटीबॉडीज मिलती हैं बच्चों को पेट के अंदर ही, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती हैं। पर उसके बाद क्या होता है, तो उसके आगे जो वैक्सीनेशन दी जाती हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस के अगेंस्ट ही बनती हैं,
तो कोई भी वैक्सीन जो बनती है वो उसी लिए बनाई जाती है अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो तभी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, तो ये सारी चीजें हमें पता है कि भाई काली खांसी है, टीबी है, ये सारी चीजें एक समय पे लाइफ थ्रेटनिंग थी, पर अब क्योंकि वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट और ये सारी बेटर टेक्नोलॉजीज की वजह से ये चीजें अब बहुत ट्रीटेबल हो गई हैं एंड स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को हम पूरे वर्ल्ड से हटा पाए हैं। तो जो टेक्नोलॉजी अगर बनती है वो आपके फायदे के लिए बनती है और उसको ना यूज करना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन मतलब कि एटलीस्ट अप टिल 9 मंथ्स की वैक्सीनेशन वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास भी ड्यूरिंग कोविड और सब जगह से और पूरा WHO से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ये सारे डायरेक्टिव्स यही आते हैं कि प्राइमरी वैक्सीनेशन को डिले नहीं करना है। बूस्टर्स अगर आप एक आधा महीना डिले कर सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो भी होनी जरूरी है। तो आपकी आंगनवाड़ी में, आपके पीडियाट्रिशियन के पास, आपके आसपास में हर जगह पे ये टीके मिलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमेशा ही देने चाहिए हैं। तो इनको डिले नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो पेरेंट्स डरते हैं, एज आई सेड कि हम लोग एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमें पहले साल से ट्रेनिंग मिलती है कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करें। तो हमारे अंदर ये होता है, हम किसी को इन्फेक्शन पास ऑन नहीं कर सकते क्योंकि हम हाथ पैर ही वैसे हिलाते हैं कि हमारे को आगे वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सारे डॉक्टर्स, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस चीज का अपने आप ही वो ध्यान रखते हैं। एक पर्टिनेंट क्वेश्चन जो काफी टाइम से आ रहा है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन के ऊपर। तो इज इट प्रोटेक्टिव? पर से इन्फ्लुएंजा जैसे कोविड पैंडेमिक इस बार आया है जो एक नोवेल वायरस रही है जो इससे पहले कभी भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करती थी। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा के आज तक दुनिया में 6 पैंडेमिक आ चुके हैं और उसके बाद 7th पैंडेमिक जो आपका बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारे भी इन्फ्लुएंजा के ही टाइप्स हैं। हर साल की ये अलग वायरस निकलती है जिसके तो साइंस अभी तक यहाँ तक प्रोग्रेस कर गई है कि हर साल का हम एक अलग म्यूटेशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न से म्यूटेट करती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एज इट इज कोविड से प्रिवेंट नहीं करेगी, पर कि जो बच्चे हैं उनको एक पर्टिकुलर सर्दी, खांसी या फिर निमोनिया जैसी इलनेस से बचाएगी और उस वीक लंग पे, उस बीमार लंग पे कोरोना का जो असर होगा वो डेफिनेटली कम हो सकता है। मतलब कोरोना का जो असर है वो ज्यादा हो सकता है, तो वो उस कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक और इन्फेक्शन बच्चे को ना हो, इसलिए ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। तो एज वी सेड कि इस बार ये टीका लगवाना डेफिनेटली बहुत जरूरी है और ये सबको लगवाना चाहिए है। एक और चीज जो हमारे पास बहुत रेगुलरली आती है और सारे पेरेंट्स भी, सब लोग पूछते हैं, काफी ज्यादा इसकी ऐड भी होती है, सब कुछ होता है कि इम्यूनिटी बिल्डर्स, क्या उनका कोई रोल है या नहीं है। तो कुछ चीजें जो हमारे को साइंटिफिकली पता है जैसे विटामिन सी, जिंक और लाइकोपीन, इन सब चीजों का डेफिनेट रोल पाया गया है। ये चीजें आपके एपिथेलियम को, मतलब कि आपकी सांस की नली, फेफड़े और जो सारी लाइनिंग उसकी होती है उन सबको प्रोटेक्ट करता है ताकि वहाँ पे आपकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ जाए और आपको जल्दी जल्दी वो इन्फेक्शन ना लगे। आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ चीजें जैसे गिलोय और अश्वगंधा पे भी लोग शायद पूछना चाहेंगे, पर उस पे मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरा साइंस ऑफ मतलब एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। बट एज अ रूल अगर कोई चीज हार्म नहीं कर रही है तो अगर उसका फायदा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो लेनी चाहिए है। ऑब्वियसली जो 3 स्टॉलवर्ड्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो सब तो यही है। मास्किंग एज वी सेड कि छोटे बच्चों के लिए अब जो डायरेक्टिव्स आए हैं 2 या 5 साल तक के या कम बच्चों के लिए वो कर दिया गया है मास्किंग। इसका रीजन ये नहीं है कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं लगेगा, इसका रीजन ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो डेफिनेटली खेलेंगे, वो अपने मुंह पे हाथ लगाएंगे, मास्क को हाथ लगाएंगे, मास्क ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद वो कहीं कहीं और हाथ लगाएंगे।
वो बच्चे क्या पता इन्फेक्टिव ना हो, पर वो कैरियर्स डेफिनेटली हो सकते हैं। तो इसीलिए वो बच्चों के लिए वो मास्क के लिए वो उसके आगे हाथ के लिए आगे वो इन्फेक्शन वो प्रोपोगेट ना करें, इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये गाइडलाइंस अब कम की गई हैं और क्या रिलैक्स की गई हैं। ऑल्सो क्योंकि बच्चों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारे से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो दिल की धड़कन होती है, सांस वगैरह होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो इसकी वजह से बच्चों को ऑक्सीजन की कमी या ये सारी चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसकी वजह से हमारे को N95 और ये सारे मास्क तो डेफिनेटली बच्चों से अब हटाए गए हैं 2 साल से कम के। नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहेगी अप्रोच टू न्यूट्रिशन। तो इसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं। न्यूट्रिशन हमारी, जैसे सर ने अभी बोला कि मैल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण बहुत ज़्यादा और बहुत कारण उसके रहे हैं। कुपोषण सिर्फ एक खाने की बीमारी नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक साइको सोशल बीमारी है। कोई शायद कुछ या शायद मेडिसिन करने से पहले मेरा भी ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि खाने की कमी भी कोई बीमारी हो सकती है, पर हाँ डेफिनेटली उसके बाद ये आया दिमाग में कि सिर्फ खाने की कमी से क्या क्या हो सकता है, आपकी पूरी पूरी शरीर पे कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। और ना ही सिर्फ वजन या मतलब आपकी ग्रोथ पे, आपके दिमाग पे, आपके खून पे, आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति पे, सब चीजों पे असर पड़ सकता है। तो न्यूट्रिशन हमारे लिए 2 तरफ की रहेगी। एक चीज वो कि आप नॉर्मल न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करें। तो अगर हमारे पास ऑब्वियसली घर का खाना, प्रॉपरली कुक्ड खाना, हाइजीनिकली बना हुआ खाना वो बेस्ट होता है। घर की बनी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान होती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी कॉमन बताना चाहूँगी जिसमें आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, जो सस्ती और घर पे रखी जा सकती हैं, जो आपका अच्छा पौष्टिक खाना आपको मिल सकता है। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मुरमुरा। मुरमुरा होता है पफ्ड राइस, उसको आप पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं। उसका छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए खीर बनाना 2 मिनट का काम होता है। उसमें आप पानी या दूध डाल सकते हैं, हल्का सा चीनी और हल्का या 1-2 चम्मच घी, तेल या कोई भी आप जो तेल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। वो अच्छा पौष्टिक आहार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि रंग बिरंगी सब्जियां, सारे फल वगैरह सब कुछ बच्चे के लिए लिया जाए। अगर वो लेना पॉसिबल ना हो पाए तो फिर हम क्या करें, हम वही चीजें हमारे इंडिजिनस क्रॉप्स मतलब कि बाजरा, रागी, मिलेट्स, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास में लोकली अवेलेबल होती है, उन सब चीजों को यूज करके बना सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी गुजरात में बहुत, मतलब गुजरात जैसे एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमनली चलती है। झारखंड के भी मुझे कोई लोग मिल रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि आपके वहाँ पे जो इंडिजिनस आपके अंदर के बने हुए क्रॉप्स हैं, वहीं पे जो चीजें ग्रो करते हैं, उनको आप कैसे यूज करके उसको और ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं और उसी तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए जब हम खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खाना एक टाइम पे नहीं खाते हैं, तो उसी खाने को हमने, उसी खाने की पौष्टिक तत्व हमें बढ़ाने हैं। तो उसमें आप हल्का सा तेल एक्स्ट्रा कर सकते हैं, चीनी 1 चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं, सब्जियां वगैरह या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और उस तरीके से बच्चे का जो पोषण है वो पूरा किया जा सकता है। और पानी वाला खाना मतलब कि दाल का पानी, चावल का पानी या पतला खाना वो अवॉइड करना चाहिए। पैंडेमिक न्यूट्रिशन का, अभी पैंडेमिक के समय या फिर जब बच्चा बीमार है तब हमें क्या करना चाहिए, तो तब हमें फिर से वही करना है जैसे ड्यूरिंग इलनेस, मतलब कि इंक्रीज न्यूट्रिशनल डेंसिटी डिस्पाइट डिक्रीज एपेटाइट। तो उसी आसार को हमें, उसी सार को फिर से लगाना है, उसी खाने को हमें और गाढ़ा, पौष्टिक और ज्यादा डेंस बनाना है, ताकि उसी बच्चे को उसी कम खाने में ज्यादा पोषण मिल पाए। और ज्यादा बच्चा एक टाइम में नहीं खाएगा, तो छोटे छोटे मतलब कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बच्चे को दिए जा सकते हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिक्विड्स, मतलब कि बहुत सारे लिक्विड्स, नॉर्मल पानी, ORS का घोल, नारियल पानी, नींबू पानी, नमक चीनी वाला या छाछ, ये सारी चीजें बहुत इजीली और बहुत ज्यादा काम आती हैं जब बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन हो। तो ये सारा बहुत सारा ये सारा पानी की कमी होने को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है या हेल्प करता है, और उससे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिटिगेट कर पाएंगे। अगला
जो पॉइंट मैं लेना चाहूंगी, जैसे मैम ने बोला, तो हमने फिजिकल या फिर फिजिकल प्रोटेक्शन की बात करी. सोशल प्रोटेक्शन, आई थिंक डॉक्टर बख्शी विल बी person to talk about it. But yes, we talk about things like cyberbullying and exposure to inappropriate content on the internet, जिसमें हम obviously parental controls, उन सब की बातें आती हैं. I think कि Dr. Bakshi would be a better person to talk about this. I'd like to move to the next slide. Last 2 minutes, doctor. ओके सर. सो अगली चीज जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो अभी तक जैसे मैंने कहा, वो है मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट पे रही है. तो सबसे ज्यादा असर जो अब हमें दिख रहा है 1.5 साल के पैंडेमिक के बाद, जो अभी हमें नजर आ रहा है, वो है बच्चों की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे. बच्चे एंशियस हैं, डिप्रेस्ड हैं. छोटे छोटे बच्चे भी ये बोलते हैं कि क्या मैं मर जाऊंगा सिर्फ एक सर्दी खांसी से. बड़े बड़े बच्चे भी ये बोलते हैं कि अरे मतलब हमेशा घर के अंदर बैठे रहो. 2 साल के बच्चे जीभ दिखाने के लिए बोलते हैं कि मास्क नीचे नहीं करना. तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पर एट द सेम टाइम ये एंजाइटी लेवल्स डिपिक्ट करती है बच्चों में. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस कोई भी एक उम्र देख के नहीं आता है, वो हर एक को इक्वली अफेक्ट करता है. अपने घर वाले तो सारे जो एजुकेशन या फिर बाकी सबके बिजी होने से जो स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन टाइम बढ़ा है, वो अराउंड मतलब ज्यादा हो गया कि बच्चों को कोई और स्टिमुलेशन मिल ही नहीं रही है. तो ये हमें करना बहुत जरूरी है कि 30 से 60 मिनट, मतलब 1 घंटे से ज्यादा बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए क्लासेस के अलावा, क्योंकि उसके बारे में हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं. मैम ने जैसे बताया इंटरैक्टिव प्ले, मतलब कि बच्चे के साथ बैठ के बात करना, बच्चे के साथ तो सिर्फ बात में इसको और आगे भी लिया जा सकता है, जैसे बच्चे को स्टोरी सुनाना, बच्चे से सवाल जवाब करना उस तरीके से कि बच्चे के क्या एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें से आपको भी आप सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है और ऐसे ऐसे नए पर्सपेक्टिव निकलते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे. एज अप्रोप्रिएट टॉयज एंड एक्टिविटीज. तो टॉयज एंड एक्टिविटीज तो जैसे मैम ने बताया कि भाई एक छोटी सी रोटी बनाना या फिर पेपर प्लेन बनाना. जैसे मेरी अगली स्लाइड है कि एक्सपेंसिव टॉयज की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेंसिव टॉयज की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है. हम लोग हमारे वार्ड्स में एक छोटी सी डब्बियों में चीनी के पीस डाल के सील करके उसको रैटल बनाते हैं, है ना. तो वो भी सेम काम करता है और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है. बच्चे को सिर्फ शीशा दिखाना 6 महीने के बाद, बच्चे से शीशा दिखा के पूछना कि ये कौन है. सवाल जब आप ऐसे करना कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करें, पॉइंट करके देखें कि ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है बच्चे की डेवलपमेंट को. जो स्टिमुलेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही है उसको किसी हद तक कवर करने के लिए, ताकि बच्चे एक नॉर्मल डेवलपमेंट पा पाए. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब बच्चों के लिए ये सारा काम किया तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है. क्योंकि हमारे पास जब भी बच्चे लाए जाते हैं तो कई बार मतलब वो बहुत लेट होता है, या फिर वो इस टाइम पे होता है कि स्पेशली पैंडेमिक के दौरान ऐसा रहा है कि लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जो बिल्कुल वायबल है. पर इतना मत ना बाहर निकलो कि आप अस्पताल ना पहुंचो या फिर आपके आसपास की अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ना पहुंचे. तो घर के अंदर भी विजिलेंट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो कुछ डेंजर साइंस में डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे फीवर और हाइपोथर्मिया 3 महीने से कम बच्चे में डेंजर साइन होता है. सांस तेजी से लेना या फिर आवाज आना, दौरे या कोई भी जो रुकने से ना रुके. एक्सेसिव सोमनिया, मतलब कि बच्चा बहुत ज्यादा उठ रहा है और उठाने से भी सो रहा है सॉरी, और उठाने से भी नहीं उठ रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है और नॉर्मल जो तरीके हैं उन तरीकों से भी वो नहीं रुक रहा है. बच्चों का जो तालू होता है, मतलब कि फॉन्टेनेल होता है, वो खुला हुआ है या फिर कहीं कहीं से भी बॉडी में पस आ रही है. तो ये सारे डेंजर साइंस होते हैं और आपको उसी समय अपने डॉक्टर या अपने आसपास के हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जाना ही चाहिए. ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं, तो ये आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये एक स्लाइड है बच्चे की सांस की तकलीफ को दिखा रही है. जो आप गड्ढे देख रहे हैं नीचे छाती पे पड़े हुए, इस तरीके से बच्चा दिखता है और सांस लेने में आवाज आ रही होती है. तो ये सारा बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आपको ऐसा लगता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए स्पेशली बच्चे को 1 डोज एंटीबायोटिक देके स्किन टू स्किन, मतलब कि चमड़ी से चमड़ी बच्चे को लगा के आपके पास के अस्पताल में बच्चे को भेजना ही चाहिए इसी समय.
Also something very very important. ये बात लास्ट में, तो ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ज्यादा हमारे पास अब आ रही है ड्यू टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। तो ये हमें देखता है कि पेरेंटल कंसर्न कभी भी लगता है कि बच्चा जैसे काम कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है या उससे डिले हो गया है, तो तब हमें डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी जो काम है वो अब नहीं हो पा रहे हैं। पेरेंटल कंसर्न जैसे मैंने बात करा, परसिस्टेंट हियरिंग लॉस मतलब कि सुनना कम हो गया है या बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, 1.5 साल तक बच्चा कुछ भी बोल नहीं रहा है, मतलब कि मामा बाबा ताता जैसे भी कोई वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, 1.5 साल तक भी अगर ऐसा नहीं है, अगर एसिमेट्री ऑफ मूवमेंट मतलब कि बच्चा एक साइड का हाथ दूसरे हाथ से ज्यादा हिलाता है या फिर एक साइड से ज्यादा प्रेफर करता है और दूसरा बिल्कुल ही नहीं हिलाता है, तो तब हमें जाना है। परसिस्टेंट टो वॉकिंग मतलब कि 2 साल के बाद भी बच्चा इस तरीके से पंजे पे चलता है, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और एक और स्लाइड है इसके बाद प्लीज, सॉरी। बच्चे का सर ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा है, बच्चा 1 साल तक बिना सपोर्ट के, बिना किसी पीठ को सपोर्ट के नहीं बैठ पा रहा है, 1.5 महीने या 2 साल तक बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रहा है या फिर किसी अलग तरीके से चल रहा है, 2.5 साल तक दौड़ नहीं पा रहा है या फिर 5 महीने पे कोई हाथ में पकड़ाया गया ऑब्जेक्ट इस तरीके से पकड़ता नहीं है, या फिर अगर सामने पड़ी चीज को 6 महीने तक पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो ये कुछ फोटोज हैं जो बड़ा है, छोटा है और ये 6 महीने का बच्चा चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इन सब में से कुछ भी होता है तो आपको प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने पास के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना ही है। और पॉइंटिंग डेफिनेटली 2 साल तक वो बच्चा किसी चीज को जैसे कि लाइट पंखा इन चीजों को पॉइंट करके नहीं बताता है, तो ये आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी है। फोटो कहाँ गई? फोटो आ जाएगी। तो फोटो भी आपको दिख गई है। I think this should be a question open for discussion later. Yeah. As Yeah. what we can do as an individual, as a community, and as a nation. Right. So, in note pe I would like to finish my talk. I hope it has been a help to all hearing the talk, and I think we can go further. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Khetrapal. Quite an insightful presentation. A bit long, लेकिन जरूरी चीजें हैं, मतलब जाननी चाहिए लोगों को और हमें भी जरूर जानना चाहिए था। और ये करीब काफी लोग हैं आज, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं चाह रहा था कि अभी हो जाए, इंस्टेड ऑफ वी गो टू द थर्ड पैनलिस्ट। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हैं अभी जो अभी के अभी एड्रेस कर सकें, साथ में कुछ और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आई थिंक दे कुड आल्सो लाइक टू रिफ्लेक्ट। हमारे साथ रवि भूषण है, वो एक पेरेंट भी हैं, एक एक्सपीरियंस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं जो साथ में हैं, तो वो उनका भी एक पर्सपेक्टिव हम अगर वो रवि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और हमारे साथ पिनाकी राउतरे हैं, हमारे जेएनयू के मित्र हैं और काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी चीज़ों पे अपनी राय रखते हैं। तो अगर पिनाकी जी सुन रहे हैं तो वो भी in 2 minutes you can like to reflect something on it. We'll love to listen to you. Ravi, you also like to speak something before we proceed to the third panelist. सर सबसे पहले थर्ड पैनलिस्ट को सर बोलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात रख सकें, इसके बाद हम लोग अपनी बात रखेंगे। Fair enough. ठीक है, then it's okay then. Then we should go to third panelist. नमस्ते। Yeah. मेरा नाम डॉक्टर आरती बख्शी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक स्कूल में, पाथवे स्कूल नोएडा में बच्चों के मानसिक विचारों पे काम करती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में भी रहती हूँ और वहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल वेलबींग और साइकोलॉजी में उनके साथ काम करती हूँ।
I have been associated with Max Hospital for over 7 years, mostly in Noida. I have gone to Gurgaon also, but mostly in Noida, Fortis La Femme in GK. Always worked as a pediatric counselor. जो किसी चीज में भी मुझे सबसे ज्यादा fun आया था was when I joined with NDCHRC, because वहां पर आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि आपको सोसाइटी को वापस देना है, और जब आपको वो वाली फीलिंग आती है तो आप पैसे से थोड़ा सा दूर हो जाते हो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज आप इस प्रोफेशन में क्यों हो. So thank you so much for letting me be here. Rajiv ji, Ravi Bhushan, Pratyush ji, Dr. Isha, Dr. Ashok, thank you so much, and all the participants. It's a privilege for me. जितना भी मैंने जिंदगी को देखा है, हम सबको यही लगता है, प्रत्युष जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यही लगता है कि जी ये हमारा गोल है, यहाँ पर हमें पहुंचना है, इतने पैसे तो होने चाहिए, घर मकान हो जाना चाहिए, बस सब कुछ बिल्कुल बेहतर. कोविड ने हमारी ये रियलिटी थोड़ी सी हट दी है. मतलब हम लोग सब अपनी किश्तियों में बैठे हैं. अब देखिए, आंधी हम सबके लिए एक ही प्रकार की है, बट हमारी किश्ती कईयों के लिए क्रूज शिप है और कईयों के लिए कागज की किश्ती. देखिए, बच्चे उस मकदार में है जहां पर उन्हें ये नहीं पता कि ये पानी में छलांग मार के उसके साथ मजा करे, या हम लोग इसमें डूबेंगे या आगे बढ़ेंगे. अनफॉर्चुनेटली ये जो मकाम हम बच्चों को दे रहे हैं, हम सबकी जिंदगी के लिए वो सिर्फ शायद 10 या 5% जिंदगी होगी. आप चाहे 20 साल के हो या 30 या 40, तो आपकी 5 से 10% आपकी जिंदगी का टाइम घर पे बीतता है. बट बच्चों के लिए, कई बच्चों के लिए ये आधा टाइम है उनकी पूरी जिंदगी के लिए. कईयों के लिए इतना बड़ा है, जो अभी जैसे 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि क्या कोई और जिंदगी भी थी. इसकी वजह से ये सारी मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका है. देखिए, हम लोग जब एक दूसरे से कभी मिलते हैं तो 2 चीजें होती हैं. एक, हम उनके नंबरों से उनसे दोस्ती नहीं करते, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थोड़ा सा पीछे हो जाता है. प्रत्युष जी, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. द सेकेंड चीजें जो हमारे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, चलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी की ना फर्क पड़े, जो हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो है एक दूसरे की हंसी खुशी, एक दूसरे को मिलना. जो वो हमारे को एनर्जी देती है ना, वो हमारा पूरा दिन जितना भी खराब हो, खुश होकर हम वापस आ सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली बच्चों का, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, खेल सबसे बड़ा उनका हिस्सा है. अगर वो ही हमने उनसे छीन लिया तो हम बोल रहे हैं उनको, ना तो आप टीवी देखिए, ना आप वीडियो गेम्स खेलिए, अब आप बस चुप करके माँ को तंग ना करिए और पढ़ाई करते रहिए. उनको उसका असर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि देखिए जैसे मैजिक होता है ना, उस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ मैजिक हो जाए, सब कुछ बिल्कुल बैठ जाए. बच्चों का सोचने का तरीका कुछ ऐसा ही है. उनकी कहानियों में एक परी आती है जो सब कुछ ठीक कर देती है. अगेन ये देखिए हमारा कैसे का अजीब माहौल हो गया है कि वो परी आ ही नहीं रही है. कोविड के मॉन्स्टर्स सारे बच्चों को तंग करते हुए 1 साल, 1 महीना, दूसरा महीना, कई साल लगातार चलते ही जा रहे हैं. अब हमारे को क्या करना है? प्रत्युष जी, द नेक्स्ट स्लाइड. जो हमें बहुत कुछ देखना है, वो जरूर ये देखना है कि डर कहाँ कहाँ फैल चुका है. क्या वो सिर्फ छोटा सा डर है जो हर्ट करता है, या वो डर इतना बड़ा हो गया कि वो मानसिक संतुलन इतना बिगाड़ चुका है कि डिप्रेशन, ग्रीफ, आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी, ये इतना बढ़ा चुका है
कि ना ही सिर्फ बच्चे तंग हो रहे हैं, उनके माँ बाप भी इतने थक चुके हैं। देखिए मेडिकल प्रोफेशन में बहुत लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि लगातार उन्होंने बिना ब्रेक लिए राउंड द क्लॉक काम किया है। पहला वेव आया, सेकेंड वेव आया, अब थर्ड वेव आने की जो आशा दिख रही है हमारे को, बहुत ही खराब आशा है। आई विश फॉर वंस देयर वाज अ फेरी हु वुड स्टॉप इट। I wish for once we did isolate ourselves for just a month completely, कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। Maybe parents need a break, जैसे maternity break और paternity break होता है ना, शायद कोविड ब्रेक भी हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। शायद 5 दिन की छुट्टी हम सबको इतना खुश कर दे कि ये जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल ड्रेन हुआ है, देखिए भावनाओं पे किसी का जोर नहीं, बट इन्वायरमेंट अगर इतना खराब हो और सिर्फ सैडनेस, डिप्रेशन और ग्रीफ हो, तो बिल्कुल डिप्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेस ही सबसे ज्यादा होता है। हम बच्चों को क्या बोलें कि आप ये अश्लील चीजें ना देखें, या ये आपके लिए खराब है, आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है। They don't know the difference. Unfortunately, parents are working round the clock to make the economic status at home comfortable. Pratyushji, the next one, please. Next slide, please. Sorry. Ji. So, what is being affected? जो अगर आप teenagers से बात करें, तो we'll have to go back a little, please. Thank you. Yeah. अगर हम टीनेजर्स से बात करें तो 3-4 चीजें बहुत भारी बार आता है। वो बोलते हैं पापा मम्मी मेरी प्राइवेसी को नहीं जानते। आजकल मतलब कभी भी देखिए कमरे के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ हंस भी बोल रहा हूँ तो बोलते हैं पढ़ा नहीं, 12th में क्या होगा, मार्क्स का तो तुम देख ही रहे हो, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में 30, 40 और 30% का गाना गाते हैं। दूसरा, अगर मैंने तैयार नहीं हुआ, नहाया नहीं, तो बस डांट पे डांट, कमरा कैसे रखा है, झूठे बर्तन क्यों नहीं उठाए। They say it just adds on to that anger. अगर आप बाहर जाके 10 मिनट स्टैपू खेल लो या बास्केटबॉल खेल लो, क्रिकेट का एक मैच खेल लो, वो सब तो बंद है। यहां तक ये भी नहीं है कि जाके थोड़ी देर झूला ही झूलाए, किसी से खेलकर हंसकर बात कराए, तो प्राइवेसी तो कुछ भी नहीं। और सेफ्टी नेट, वेल सेफ्टी नेट तो रहा नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज पे तो आ जाता है एक्सेप्ट कुकीज। अब एक्सेप्ट कुकीज जब जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट पे करें, इट लीड्स यू टू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड इंटरनेट bombast of things which is unfortunate. Now देखिए केस पे केस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गूगल ने बोला कि वो फेसबुक आपका सारा कुछ जो मैटर है वो डेटा सेल करता है। कितना सच कितना झूठ किसी को नहीं पता, बट पेरेंट्स हैव बिकम हाइपर विजिलेंट। देखिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो थी ना, वो पहले छोटे बच्चों के साथ होती थी, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, साइकिल करते हुए ध्यान रखो। अब अगर 17 साल के बच्चों पर भी हाइपर विजिलेंट या पेरेंटिंग ऐसे हो रही है जैसे वो 5 साल का बच्चा हो, तो वो रिवोल्ट ही करेगा और क्या करेगा। और उसके ऊपर ना फ्रेंड्स हैं, फोन पे बात करो तो फोन नीचे रखिए, पढ़ना शुरू करो। आप आपकी 10वीं है, आपकी 12वीं है जी। नेक्स्ट, सो टेक्नोलॉजी एडिक्शन। वेल पहले क्या होता था, फोन मिलता था इतना कि ट्यूशन तक जब जा रहे हो तो सेफली जाओ, साइकिल पे जा रहे हो। अब साइकिल क्या, बाहर क्या, ट्यूशन भी आपकी ऑनलाइन। 8 घंटे पढ़कर आप जब 2 घंटे क्लास पे पेरेंट्स खुश रहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे हैं, उस पे डांट पड़ जाती है कि यूट्यूब पे क्यों गए, या आप किस तरीके के गाने सुन रहे हो। तो बच्चे सिर्फ यही बोलते हैं। पढ़ाई के 10 और 12 घंटे के बाद जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कभी कभार हमें कुछ ऐसा देखना है जिसमें हमारा दिमाग ना चले, सिर्फ कुछ एंजॉयमेंट के लिए। क्योंकि मेरे दोस्त भी वो देखते हैं,
मुझे भी देखने का दिल करता है। क्या ये गलत है? हाँ, अगर आप टाइम पे ना सोएं तो बहुत गलत है। हाँ, अगर आप उस इनअप्रोप्रिएट जगहों पे जाएं, पॉर्न की तरफ एडिक्ट हो जाएं, तो जरूर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि कई लोग वीडियो गेम्स 14 से 18 घंटे खेलने के वजह से हॉस्पिटल्स लाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना एडिक्टेड है कि कुछ और सोच नहीं सकते। उनका फोकस, कंसंट्रेशन, केंद्र मात्र जैसे बोलते हैं कि एग्जाम के लिए चाहिए ही, वो तो सब बाहर निकल चुका है। तो टेक्नोलॉजी एडिक्शन, अब ये मैं ये नहीं बोल सकती कि नेसेसिटी है कि खराब है, एडिक्शन है, क्योंकि आजकल तो सभी कुछ, पढ़ाई से लेकर ट्यूशन तक, सब कुछ ही टेक्नोलॉजी पर है। हाँ, पेरेंट्स अगर अपना फोन शायद व्हाट्सएप को छोड़कर नीचे रख दे तो शायद वो वार्तालाप या बातें हो सकती हैं जो बच्चे चाहते हैं। आखिर वो फोन क्यों उठाकर अपने पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं? अगर सोने की चर्या में ऊपर नीचे हो तो ऑब्वियसली बच्चे सुबह उठकर स्कूल तो नहीं जा पाएंगे, ना लॉग इन कर पाएंगे, ऊपर से चिड़चिड़े, वापस गलत हिसाब से आपसे बात करना नॉर्मल हो जाता है। जी नेक्स्ट। तो क्या कर सकते हैं? अब घर में 2-3 चीजें जो हम आराम से कर सकते हैं। पहली चीज, ध्यान। देखिए, कई फैमिलीज योगा करती हैं, कई फैमिलीज घर में ही 10-12 बारी चल लेती हैं चुप होकर, या 5 मिनट की चुप्पी, या 5 मिनट का गाना सुनना, या 5 मिनट का सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठना, किताबें पढ़ना, ये सब चीजें आपका ध्यान एकत्रित करती हैं। वही जरूरत है आपकी पढ़ाई के लिए, वही जरूरत है आपकी भावनाओं को एक साथ संतुलन में रखने के लिए। प्रत्युष जी नेक्स्ट प्लीज। दूसरा चीज, एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में कैसे हम बात करते हैं। अगर हम पेरेंट्स हैं तो कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम उस पर रिएक्ट करते हैं। देखिए, पेप्सी की जैसे बोतल रहती है ना, अब मैं जैसे आपको बोल रही हूँ आंधी तो हम सबके लिए एक ही है। अब पेप्सी की बोतल जैसे अगर हिलाओ तो बिल्कुल छलकती है, और पानी जितना भी हिलाओ नीचे रखते ही शांत हो जाता है। पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी घर पे हो, या तो पेप्सी बन सकते हैं या शांत पानी। तो जो चीजें आपके संतुलन में है, आपके कंट्रोल में है, वो ही आप एक साथ कर सकते हैं। शायद आप गाना लगाकर 2 मिनट नाच गा लीजिए, शायद आप एक साथ पिक्चर देख लीजिए, शायद आप एक साथ खाना बनाकर साथ ही हंसते हुए सब सामान एकत्रित कर लीजिए। ये सब आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट स्लाइड जी। Yeah, just one request. I know, we have such a important session going on, but just last 5 minutes. So we wanted to keep it open for people to ask any questions. So thank you, Dr. Aarti. Really appreciate. We really enjoy and we want to hear more. But just we are keeping it open for people. Yes, of course. Thank you so much. Thank you. Yeah, Ravi, speak some questions. इसमें थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट। में ज्यादा फॉर्मेलिटी में टाइम नहीं दूंगा। मैं सारे जितने भी लोग डिपार्टमेंट से या जो फील्ड से हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट सेक्टर में 3 E's का कॉन्सेप्ट है। 3 E's का कॉन्सेप्ट जो है वो है, पहला ई जो है वो है जो इंटाइटलमेंट गवर्नमेंट के द्वारा या आसपास के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एनजीओज हैं, या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, या जो भी हमारे पास है इंटाइटलमेंट्स जो हैं, उसको हम टैप करें। सबसे पहले कोशिश करें कि हर एक फैमिली को सिर्फ बच्चों पे कंसंट्रेट ना करें, पूरी फैमिली को कम से कम 4-5 ऐसे स्कीम्स से जोड़ें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमारे बच्चे हैं या जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनको की जरूरत है कोविड के टाइम पे या पहले भी, उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है, और वो उसके लिए काफी स्कीम्स उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उनको स्कीम्स के साथ जोड़ें। जो सेकंड है वो है एम्प्लॉयमेंट में, यदि
पेरेंट्स को आप किसी एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके कारण अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग ये पूछ रहे थे कि लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट के कारण जो घरों में जो लोग बैठ गए हैं तो उनका जो बेसिक नीड है उनको नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि लोग आजकल एसएचजीस के थ्रू या फिर छोटे ग्रुप में मिलकर के वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि हमारे मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट है कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ईशा ने जो बोला था उस पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर ईशा का बोलना ये था कि आप जाकर के फील्ड में यह ना बोले बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कि सेब खाना जरूरी है और फ्रूट्स खाना जरूरी है, हरी सब्जियां खाना जरूरी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोकली अवेलेबल है और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको देना जरूरी है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड सोशल जस्टिस या जो आपका डिपार्टमेंट जो बच्चों के लिए जो टेक होम राशन देता है, दैट इज वेरी एसेंशियल। और वो जो राशन है वो बहुत ही रिसर्च के बाद उसको काफी टेस्ट किया गया है, उसके बाद वो बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उसका आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अशोक कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक सर कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज सर। No, I mean, thank you very much for adding these things, apart from when you talked about this government schemes. So, I mean, there are three major schemes as far as Delhi is concerned. One is, of course, by PM Care Fund. I mean, 10 lakh corpus money for all those children who is affected by this COVID-19. And CM Care Fund also in Delhi. And they are providing 50,000 ex gratia amount, apart from the monthly maintenance of 2,500 for all those children. The one good thing my colleague and friend Amit Das raised the issue that we should develop the child protection mechanism. So these are the small units that can support children in distress in difficult times. So these are the things. Also, question he raised that should we develop a model for the capacity building of the frontline workers? I mean, they are going to be, in fact, the grassroots warriors for fighting this probable third wave. So these are the things. But it is wonderful to, I mean, listen Dr. Aarti Bakshi and Dr. Isha. Thank you so much for enriching. मेरा भी एक क्वेश्चन है पैनलिस्ट से. In my observation, the difference between the food and the micronutrients and the nutrition. I mean, food you may be having all the time, maybe 5 times a day, but you may not have the right kind of nutrition. And it is affecting the population since long. It has started affecting the population in this last 2 years quite adversely. मुझे याद है करीब 2007 or 8 में when I was working in Bihar in Patna with one of the UN program, and district magistrates used to avoid going into meetings related with anything on nutrition and all that. He used to say that he would delegate any senior officials, so you go and attend that, and he used to say, okay, what I go and see that लोग एप्पल और संतरा खाने की बातें करेंगे वहाँ पे, so what is there to contribute from my side? So you go and see that. So that's not very important from the administration side. It's very frivolous kind of meeting. So why they have called for the meeting and taking my time? So somebody has to go and fulfill the protocol and all. So that was kind of impression that created the nutrition sector. I mean, that time. Now the nutrition is very, very important. It was already important, but now you have seen the impact. Among all the micronutrients, one thing I realized that is vitamin D is not naturally produced thing. You don't get from the food. Something you make it from the fish or milk, but generally you don't get vitamin D in all the micronutrients. And और आप pandemic में घर में ही रह रहे हैं, तो among all the nutrients, vitamin D is the one thing which is affecting people more and more. I have come across so many people who is suffering from the lack of vitamin D into their bodies, and it affects their cognitive abilities, the ability to recall and all that, and it is very, very dangerous over the years. It will weaken your bones and all. तो उसको कैसे ओवरकम करे कोई भी फैमिली, खासकर जब पैंडेमिक में रह रही है और घर में रह रही है,
और उसको विटामिन डी फूड से नहीं मिलता है, जो नेचुरली ही मिलता है, सनलाइट वगैरह से मिलता है, और आप घर में नहीं से बाहर कम निकलते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करेगा ये कोई फैमिली या बच्चे जो भी हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है? आई मीन पैनलिस्ट कैन शेड लाइट ऑन इट. I would like to answer this question. Sorry, ma'am, would you like to answer? No. I just thought of one thing. Dr. Isha, please continue. I'll say it after that, please. तो सर विटामिन डी जैसे आपने बात करी, तो ओवर द पास्ट 10 years और सो उसका रोल बहुत ज्यादा इमर्ज करके आया है, एंड उसके जो रिसेप्टर्स हैं, मतलब दैट हैव बीन फाउंड एवरीवेयर, सो मच सो कि इवन ट्यूबरक्युलर पेशेंट्स में, जैसे टीबी के जो मरीज होते हैं, उनमें भी दवाई की एफिकेसी कितनी होती है, और उसका जो म्यूटेशन मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म है, उसमें भी पाया गया है. विटामिन डी को इनफैक्ट पहले एक विटामिन माना जाता था, अब हम उसको एक हार्मोन के जैसे ज्यादा मानते हैं. वन. दूसरा कि विटामिन डी के ऊपर इतनी रिसर्च की जाने के बाद, जो आज ही इनफैक्ट मेरी किससे डिस्कशन भी हो रही थी, कि जो हमारे देश के लिए, जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन की अकॉर्डिंग जो टाइम ऑफ बेस्ट सनलाइट है, वो अराउंड सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का है. इस टाइम पे अगर हमें धूप मिलती है डायरेक्टली सनलाइट से, तो तब हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, बट वो एक प्रैक्टिकल टाइम नहीं है, बिकॉज या तो वो काम का या गर्मी का टाइम होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि अब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो पोल्यूशन और उसका खतरा और भी ज़्यादा होता है. दूसरी चीज़ कि ये एक गलत नोशन है कि खाने से विटामिन डी नहीं मिलता है. डेफिनेटली मिलता है, पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलता है. जैसे एग योक, मतलब कि अंडे का जो पीला पार्ट होता है, वो विटामिन डी रिच है. दूध में कैल्शियम है, ठीक है, और भी कुछ फल और फ्रूट वगैरह होते हैं, फल और सब्जियां जो विटामिन डी रिच होती हैं, बट डेफिनेटली उससे हमारी जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती है. तो वी एज अ नेशन, मतलब कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हम प्रोन है विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए. अब उसको हम पूरी कैसे करें? तो हमारी जो पीडियाट्रिक गाइडलाइंस है, वो अब ये कहती हैं कि भी हमें हर एक को कुछ एक पर्टिकुलर मात्रा, मतलब कि जिसको हम रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, तो वो हमें लेनी ही चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से. वो आप खाने में भी ले सकते हो, अगर आप अपना खाना बढ़ाते हो, आप उसको एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि अब हम एटलीस्ट 5 से 6 जो मैक्सिमम ग्रोथ का टाइम है एंड एडोलेसेंस, उस टाइम पे हम लोग हर बच्चे को ये विटामिन डी देते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि कि उनकी ग्रोथ और जो पूरी हार्मोनल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो पाए. ड्यू टू, मतलब इस लैक ऑफ दिस विटामिन से या हार्मोन से ये रुकनी नहीं चाहिए. तो इसको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस साइंटिफिक जगह पे हम खड़े हैं, उसको हमें एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के जैसे ही पूरा करना पड़ता है, और कोई हमारे पास अभी तरीका नहीं है. जैसे पहले बच्चे बाहर बालकनी में बैठ के खेलते थे ना, वो एक बहुत आसान तरीका है बच्चों के लिए विटामिन डी अब्सॉर्ब करने का. कईयों की खिड़कियों के सामने भी धूप आती है. अगर बच्चे का वहां पलंग या कारपेट या कुछ वहां लगा दे, तो वहां पर बिना कोई बच्चे को हिलाए हुए विटामिन डी उस बच्चे को खेल खेल में ही मिल जाती है. सो दीज आर ऑप्शंस आउट. सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फील्ड के जो लोग हैं ना, या जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको भी सर कुछ सवाल पूछने का मौका दिया जाए. प्लीज प्लीज जो पूछ सकते हैं. इफ पॉसिबल मैं फील्ड के लोगों के लिए को कुछ कहना चाहूंगी. जी जी, यस प्लीज. आंगनवाड़ी वर्कर्स और फील्ड के लोग हैं, तो आपको जो वेव निकली है और जो अब आने वाली है या आ सकती है, आपका सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी रोल है, क्योंकि आप ही को जिस पेशेंट को आप वहाँ पे या घर पे मैनेज कर सकते हैं और जिस पेशेंट को आगे जाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर ही है. तो आपका इन सेशंस को अटेंड करना और इन ऐसी चीज़ों से आपको कन्वर्सेंट होना या इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं,
जैसे जननी सुरक्षा, ये सारी चीजें जो है उसमें भी आपकी सारी ट्रेनिंग होती है, IMNCI एंड एवरीथिंग। तो वो डेफिनेटली, मतलब आई वुड लाइक टू प्रेज एवरीबडी इन द टीम एज वेल एज इन द फील्ड, एज वेल एज आस्क फॉर देयर कंटिन्यूड कोऑपरेशन, क्योंकि इसके आगे अगर हमें इस महामारी से बचना है या बेटर होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्हीं का ही रोल है। मैं जस्ट एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, दैट मेनी टाइम्स इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। सूचना की बहुत जरूरत होती है, कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, कौन लोग हैं जो हमें हेल्प करेंगे, कौन सी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट जो दे रही है लोगों को, ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है। और जो खास करके जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग पेरेंट्स जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके और हमारे बीच और जो बाकी मैकेनिज्म है उनके बीच एक कड़ी का काम करते हैं। तो उनको कम से कम हमसे, अगर उनके पास सॉल्यूशन ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो आगे जरूर पूछना चाहिए। हम जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप हमारे पास आइए, हम लोग कोशिश जरूर करेंगे हेल्प करने की, इंफॉर्मेशन पास करने की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मदद मांगिए। कई बार लोग हेल्प नहीं मांगते, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। ना मिले तो भी मांगिए, आप 4 बार मांगिए, हो सकता है 3 बार हम हेल्प ना कर पाए, बट एक बार जरूर कर पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है स्टेट टीम से, जो स्टेट के लोग यहाँ पे हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार करें आप, जिसमें कि आप ये करें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास की बहुत सारे स्कीम्स है, उसका एक डायरेक्टरी बना सकते हैं आप, और वो उसका इंफॉर्मेशन आप जब कम्युनिटी की मीटिंग करते हैं तो उसमें आप डिसेमिनेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि लोगों को कैश सपोर्ट कर रहे हैं या कैश के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब लोगों ने अभी खुल करके लोगों का हेल्प किया है। तो इस तरह की एक डायरेक्टरी आप बनाइए स्टेट लेवल पे, जिसमें अपने स्टेट के सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हो, और ऐसे स्कीम्स जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं उसको भी उसमें इंक्लूड करें, और अपने जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं या जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन फैमिलीज तक पहुंचे, कम्युनिटी तक पहुंचे, और उससे उसका वो फायदा उठा सके। रवि जी, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाह रही हूँ। जो ये डायरेक्टरी में कई लोग अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं और पढ़ना लिखना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कोई लैंग्वेज में, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, छोटा सा ऑडियो बनाकर अगर व्हाट्सएप पे डाल दें तो वो बहुत धीरे धीरे बट इंस्ट्रक्शन सब जगह पहुंच जाता है। अनुजा कुछ पूछना चाह रही है। अनुजा, हेलो, नमस्ते। जी। मैं पुणे से बोल रही हूँ, न्यू विजन ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ, और बेसिकली मैं स्ट्रीट कम्युनिटी में काम करती हूँ, और जहाँ पे हम जो डिफरेंट स्ट्रीट बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, और जैसे उनकी जैसे हमने आज डॉक्टर ईशा, डॉक्टर आरती से हमने बात करी अबाउट विटामिन डी एंड ऑल, वो नेचुरली उनको मिलता है बिकॉज वो घूमते ही रहते हैं। ओके, बट बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस है जो कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग होता ही नहीं है, वो बिकॉज वो वैसे ही घूमते हैं, प्लस उनके न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा चैलेंजिंग अभी इशू है, बिकॉज उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही खराब है, काम नहीं है लोगों के पास, हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम है, और मास्क कोई नहीं पहनता है। तो ये सारी चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा फेस हम करते हैं, बिकॉज जितनी सारी बातें हुई, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेके या जो भी हम मेडिकल हेल्थ, जो बच्चों की इश्यूज हम समझते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज हम रिलेट कर सकते हैं। शायद जो हमारे मीन्स जनरल जो थोड़े अफ्लुएंट भी हैं या मिडिल क्लास के लोगों के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट है, बट वो जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल स्ट्रीट बेस्ड हैं, उनके लिए हमें बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन एजुकेशन तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्क्रीन टाइम की हम क्या बात करें, पहली बात तो वो ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे विदाउट
पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हम बहुत सारे चीज़ों पे हम एक्चुअली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ पे थोड़ा-सा हम बेसिक चीज़ें जो उनको समझा सके कम्युनिटी लेवल पे, वो हमें थोड़ा-सा हमें एडवाइस कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल वैल्यूड पॉइंट बोला आपने अनुजा जी। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र का जो मेरा काम करने का एक्सपीरियंस है, उसमें जब मैं काम करता था तो ऑर्फन ऐसे बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स HIV के कारण उनका डेथ हुआ, वो ऐसे बच्चे जो ऑर्फन हुए हैं सिंगल या डबल, उनके लिए हम लोग काम करते थे। बहुत कम रिसोर्सेज थे हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जो लोकल हमारे MLA हैं, MP हैं, या जो हमारे वार्ड के कमिश्नर हैं, दे हैव मनी, उनके पास पैसे होते हैं। आप इन सबों को टैप कर सकते हैं। पास में जो आपके बैंक हैं उनके पास CSR का फंड होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, आपके मोहल्ले में यदि कोई बैंक है तो उसको आप पकड़ें, 5,000 10,000 रुपए सब देते हैं, उनके पास ये पैसा होता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, उनके पास पैसा होता है। आप वहां पे जो आपके जो RWA होता है, जो उनके पास पैसा होता है। नहीं आ रही आवाज। तो आप उनको जाकर के बोलें कि आप कम से कम हमें 100 मास्क का पैसा दे दो। आप जो भी मीटिंग कर रहे हो उसमें हम एक पर्ची बांटना चाहते हैं या 5 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं। छोटे छोटे रिसोर्स को मोबिलाइज करके आप काफी चीजों को डिसिमिनेट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने 4 स्टेट में कम से कम 40 ऐसे विधायक और जो विधायक होते हैं या जो MP होते हैं, उनसे हम लोगों ने महीने के लाख लाख रुपए लिए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बुलाओ उस मोहल्ले में, एक माला पहनाओ, तालियां बजवाओ, अगले दिन 1-2 पत्रकारों को बुला करके पेपर में छपवा दो, वो आपको पैसे देंगे। तो थोड़ा आपको स्ट्रीट लेवल पे भी, मतलब वहां पे कोशिश ये करना पड़ेगा कि कैसे आप लोकली रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हो। उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके पास जो पैसा है उसको क्या करना है। आप उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उनको बताओ कि आपके क्षेत्र में इतने बच्चे हैं, इतनी फैमिलीज है जिनके पास की मास्क नहीं है, या मास्क है तो उनके पास बेसिक खाना नहीं है, बेसिक खाना है तो उनका रोजगार छूट गया है, मनरेगा में कैसे वो जुड़ेंगे। इस तरीके से जाकर के आप बात करोगे। पहले अकेले बिल्कुल मत जाओ, 10-15 लोगों को लेके जाओ, उनको बुलाओ, उनको माला पहनाओ, मिठाई खिलाओ, और वो पैसे निकालेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनका पैसा कहाँ जाता है। हमारे जितने भी MLA MP हैं, उनके मैक्सिमम पैसे वापस जाते हैं, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अपने पूरे, जो उनको फंड अपने कम्युनिटी में लगाना होता है। तो उस पैसे को आप इस टाइम पे लगा सकते हो। दे विल इजिली एक्सेसिबल, और उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनको क्या करना है पैसे का। तो आप जाइए उनके पास, वो आपको पक्का हेल्प करेंगे। और कोई सवाल पूछना चाहता है? लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अशोक सर का एक्सपीरियंस और डॉक्टर ईशा का इतना अच्छा, मतलब हम लोगों को बहुत पहले डर लगा था कि आप बहुत टेक्निकल बोलेंगी, लेकिन जिस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन से लोगों को इतना क्लैरिटी मिला, और आरती जी आपका प्रेजेंटेशन स्किल और आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत इंसाइटफुल था। वो बहुत हेल्प हुआ उससे हम लोगों की, मतलब जो भी लोग पैनल में आए थे, मैं प्रतीक सर को बोल रहा था कि कहीं हमारा सेशन ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था। लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड था, लोग कनेक्ट हुए। तभी आप देख रहे होंगे कि अभी भी लोग, मतलब 1.5 घंटे का टाइम था और अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, जा नहीं रहे। थैंक यू सो मच। और मैं राजीव सर से बोलूंगा कि यदि और सवाल नहीं है तो फिर से हम लोग इसको बाइंड अप कर सकते हैं। हेलो। हाँ सुरेखा जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये सवाल है, जैसे अभी मीटिंग में हमें जानकारी मिल रही है, या कोई भी हम जैसे WCD के साथ मीटिंग हो रही है तो उसमें वो अपनी जानकारी दे रहे, हम वो क्या नाम है, NGO सेक्टर में ही हम लोगों को नहीं पता होता है कि सरकार की क्या सेवाएं हैं, क्या योजना है, तो कम्युनिटी को कैसे होगा। और जब आप दिल्ली में निकलो या देश के किसी भी कोने में निकलो तो सरकार अपने प्रचार को बड़े बड़े होर्डिंग में लगवाता है। सरकारी योजनाएं और सेवाओं के बारे में जानकारी का होर्डिंग क्यों नहीं लगता है? क्या वो केवल कागज तक है या केवल मीटिंग में जानकारी देने लायक है? जिससे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों में अवेयरनेस की है। लोगों को जानकारी नहीं, हम जैसे लोगों को भी कोविड के दौरान हम कहाँ संपर्क करें, कौन सा हेल्पलाइन है, ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाएं, तमाम तरीके की दिक्कतें थी, लेकिन हम हताश थे। फोन करो, फोन नहीं उठ रहे। लेकिन मीटिंगों में हमारी सारी योजनाएं हैं, हमारी सारी क्या नाम है सेवाएं हैं, तो वो आप प्रचार प्रसार में क्यों नहीं
दिखाई देता है? मेरा ये सवाल है थोड़ा सा। और वो तीसरा वेव आने से पहले शायद अगर इसका प्रबंध कर दिया जाए, छोटी छोटी जानकारी गलियों में, मोहल्ले में, बैनर से, होर्डिंग से अगर लगा दिया जाए, तो शायद आम पब्लिक भी उसका कुछ फायदा उठा पाएगी। सुलेखा जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जो स्कीम्स हैं, जो भी ऐसे स्कीम है, ना तो देने वाले को मालूम है, ना तो लेने वाले को मालूम है, दोनों को नहीं मालूम है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि रिसोर्स डायरेक्टरी बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप यदि आंगनवाड़ी पे काम करती हैं तो अपने सुपरवाइजर को या सीडीपीओ को बोलिए कि हमें एक ऐसी डायरेक्टरी बनाइए, या हमारे पास ऑलरेडी बनी होगी, हम लोगों ने इतने सालों काम किया है तो हमारे पास जरूर ये डायरेक्टरी होगी। आप उनसे बोलिए कि हमारे पास जो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम सबों को दिया जाए, और हमारी जो मंथली मीटिंग होती है या 15 दिनों पे जो मीटिंग होती है या सप्ताह की जो मीटिंग होती है, उसमें एक सेशन लिया जाए कि कोविड के समय में हम कैसे बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, कौन कौन से स्कीम ऐसे हैं जहां से कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को जोड़ सकते हैं। इस तरीके के सेशंस आप अपने यहाँ रखिए, पहले जानकारी आपको होगी और फिर आप जानकारी को डिसेमिनेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो पहले अपने जानने के लिए आप अपने सुपरवाइजर्स को या स्टेट टीम को लिखिए कि हमें एक ऐसा डायरेक्टरी जो पहले से बना हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट ने बनाया हो सकता है कि किसी और ने बनाया हो, किसी एनजीओ ने बनाया हो, लेकिन और नहीं बना है तो उसको बनाइए और उसको आप खुद पढ़िए, खुद जानकारी लीजिए और लोगों को बताइए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट की साइट पे जाना सभी के लिए, सभी लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। कोई पेरेंट्स मतलब जैसा बताया डॉक्टर ईशा ने कि या अनुजा जी ने जो बताया कि पुणे का जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि वहां पे तो इंटरनेट होता ही नहीं है। बच्चे मतलब जो डिजिटल सेवाएं जो अभी हैं जिससे कि क्लासेस चल रही हैं वो उसको एक्सेसिबल मतलब उनको वहां तक की रीच ही नहीं है। मतलब जो और भी बहुत सारे काम है, माँ को फैमिलीज में बात करना होता है, बहन को दोस्तों से बात करना होता है, फादर को ऑफिस में बात करना होता है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, तो डाटा कम बचता है। तो इस कारण से लोग जाकर के गूगल पे नहीं देख सकते कि क्या क्या डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कीम्स है। तो उसके लिए डायरेक्टरी बहुत जरूरी है, और वो उनके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप फील्ड में जाते हो। लोग ये जानते हैं कि ये दीदी हैं जो बताएंगी हमें किसी स्कीम के बारे में, तो आप अपना नॉलेज बढ़ाओ। उसका तरीका यही है कि अपने स्टेट के या अपने सीनियर से जानो कि क्या क्या स्कीम्स हैं, उसकी एक डायरेक्टरी बनाओ, उसका एक पूरा लिख करके आप अपने सेंटर पे भी लगा सकते हो कि ये स्कीम के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें मिलती हैं और ये चीज हम दिलवा सकते हैं। इस तरीके का आप इंफॉर्मेशन अपने सेंटर पे लगवाइए। सर वो तो हम करते हैं, सरकार की प्रचार प्रसार क्यों नहीं करती, मेरा सवाल ये है। वो तो हम करते हैं। अभी मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को पैसा ही नहीं मिला 1.5 साल से। एक महिलाओं की केस स्टडी में उठा के ले आऊं जी। Ravi, sorry, we have 1 hour 50 minutes. It's already there, so we have to stop this meeting here. You can quickly close, your answer. I think she is raising some valid point, but let's try to close this quickly. Thank you. सुलेखा जी, मैं आपको अलग से जवाब दे दूंगा। राजीव सर, you please go ahead. Yeah, thank you, Ravi. It was quite a intense debate. I mean, उनका questions relevant है, लेकिन शायद उसका जवाब कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। Thank you very much for all the panelists, Ashok ji, Dr. Isha, Dr. Aarti, Pratyush, Ravi, all the participants. I mean, this first time we have seen a lot of participants on this issue, and very pertinent issue. I think हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस इशू पे शायद अगर और बात करने की जरूरत है तो जरूर बात करेंगे। और JNU डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के बैनर के अंतर्गत कुछ और भी काम हम लोग कर सकते हैं in different forms and different capacities. So definitely we will try to strive for that. And I mean, now let's sum up for the day, and thank you very much for your kind contribution. You all came and reflected quite vigorously on the topics given, and mostly we were on the time, and at least I'm going with a lot of positives and a lot of good memories from this to today's debate. So thank you very much. Pratyush, you want to say something, a few last words, or we shall? Yeah. So thank you very much. I just wanted to add that recording of this session will be available soon. We'll try and make it available. Links will be shared in all possible groups.
So you people who have not been able to join us today, they can always listen to the video and audio they can hear. And we will certainly, I agree with you, Rajiv ji and Ravi, that we should do more such sessions. Aarti ji is also supporting, she is keen to help us further. So we would definitely take help from Dr. Isha and Dr. Aarti, and Ashok ji is there. So we would try to do some more activities from our front. That's the learning we have. I think information is power, and we must, help people get it. Yeah, thank you. Thank you very much, guys, for coming, participants. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, Thank you. session is concluded. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Doctor.